मॉर्निंग स्टूडेंट, 8मा ધોરણની અંદર આપણે પાઠ ચોથાની અંદર કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એમાં ભાગ પહેલાની અંદર આપણે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના જીવન ચરિત્રની થોડી ઘણી વાતો કરી, એમની જેલ યાત્રા વિશેની, એમના જીવનના ગુણો વિશેની, એમની વિશેષતાઓ વિશેની વાતચીત કરી. હવે પેજ નંબર 21 ઉપર છેલ્લા ફકરાથી પાછો આગળ ભણવાની શરૂઆત કરીએ. એની પહેલાં આપણે એમની જેલ યાત્રા વિશેની થોડી ઘણી વાતચીત કરી હતી કે 1942ની અંદર સૌથી વધુ લાંબો સમય સુધી એમણે 3 વર્ષ સુધી જેલ યાત્રાઓ ભોગવી હતી. ત્યાર પછી इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे. देश हित માટે સેવાઓ તો કરતા જ હતા, પણ સાથોસાથ એમણે દેશની વ્યવસ્થામાં પણ પોતાની રીતે યોગદાન આપવા માટે પદાધિકારીઓના રૂપમાં પણ એમણે દેશની સેવાઓ આપી. सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए. इस पद पर वे सन 1938 तक रहे. 1938 સુધી એ સંયુક્ત પ્રાંતીય કોંગ્રેસ કમિટીના સચિવ તરીકે પદભાર સંભાળેલો હતો. किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था. किसानों प्रति एमने एक प्रकारનો लगाव હતો, इसलिए उनको 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था. 1936ની અંદર જે ખેડૂતો હતા એમને લગતા જે પ્રશ્નોની માટેની એક કમિટી બનેલી હતી, તેમના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા. पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया. जमींदारी उन्मूलन એટલે જડથી નષ્ટ કરવું અને નાબૂદ કરવો, એનો નાશ કરવો. જમીનદારી એટલે જે ખેડૂતો છે એ પોતાની મહેનત કરે, પાક વાવે, પાકને ઉગાડે, પણ એનો અમુક જે ભાગ જે છે એની જે આર્થિક જે એમને જે વળતર મળે એનો અમુક ભાગ એમણે ખેડૂતો જે ગામમાં રહેતા હોય તેના જે જમીનદારો હોય એ જમીનદારોને આપવો પડતો હતો. જે પ્રથા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ એમના માટે જે રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો એમાં એક રજૂઆત કરેલી હતી અને એ પ્રથાને પછી नाबूद करी थी. इसके बाद के 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे. अलाहाबाद नामનું શહેર છે એમની નગરપાલિકામાં 6 વર્ષો સુધી એમણે સેવાઓ આપી. मैं समझता हूँ कि इस अनुभव में भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया. એમના જે સ્વભાવના કારણે જે નાગરિકોની જે સમસ્યાઓ હતી, જે મુશ્કેલીઓ હતી, એમણે વધુ નજીકથી જોઈ. સિસ્ટમમાં આવ્યા પછી, વ્યવસ્થામાં આવ્યા પછી એ વધુ નાગરિકો સાથે જોડાયેલા રહ્યા. उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था. अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका के ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था. એમને ગ્રામીણ જીવનનો, ગ્રામીણ મુશ્કેલીઓનો સમય એનો અંદાજ તો હતો જ, એનો અનુભવ તો હતો જ, પણ હવે સાથોસાથ એમને નગરપાલિકાના કાર્યકર તરીકે, એક પદાધિકારી તરીકેનો પણ અનુભવ એમની પાસે હવે હતો. लोकतंत्र की साधारणभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उसके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे. દેશમાં જે નાની નાની સમસ્યાઓ છે, જે રાજ્ય કક્ષાએ જે સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય, એ સમસ્યાઓ અને સમસ્યાઓ દૂર કરવા માટેના પ્રયત્નો કેવા હોવા જોઈએ એના વિશેની હવે એમની પાસે પૂરેપૂરી જાણકારી આવી ગયેલી હતી. कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए. 1937ની અંદર એમની સખત મહેનત અને કામ પ્રત્યેની જે નિષ્ઠા, જે ભાવના હતી, એમના કારણે 1937ની અંદર પ્રાંતીય વ્યવસ્થાપિકા, સંયુક્ત પ્રાંતીય વ્યવસ્થાપિકા સભા જે હોય એમાં એમને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા. सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई. संसदीय जीवन की शुरुआत है ये शास्त्री जी 1937 में थी थी, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ. જેનો અંત, જેની સમાપ્તિ ક્યાં થઈ? દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી. शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में
मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। इंदिरा गांधी हता एमणे एवुं कह्युं हतुं के मारा राजनीतिक जीवननी शरूआत करवा पाछळनो आधारभूत व्यक्ति जो कोई होय तो ए छे लाल बहादुर शास्त्री। कारण के लाल बहादुर शास्त्रीने आपणा देशनी जे मुश्केलीओ होय अने देशनी जे राजनीति हती एमनी एकदम साची अने खूब ऊंडी एना जीवननी राजनीतिक जीवननी एमना उपर पकड़ हती। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी की भिन्न भिन्न पदों पर रहे। देश की आज़ादी पछी उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार अलग अलग पदों पर एमणे कार्य कर्યું। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। अलग अलग मंत्री पदों पर एमणे केंद्र व्यवस्था अंदर केंद्र सरकार के अंदर पण संभाळ्या हता। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, दक्षता एटले निपुणता, आ पदों पर रहीने एमणे जे प्रशासननी जे निपुणता होय, प्रशासन केवी रीते चलावવું, ए व्यवहार केवी रीते करवानी जे निपुणता होय, जे आवडत होय एनुं एमणे प्रमाण आप्युं। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। व्यवस्था कई रीते चलावी एनु जो कोई पण उदाहरण, जो कोई पण आपणे शीख मेळवी होय तो लाल बहादुर शास्त्रीना जीवन परथी मेळवी शकीए छीए। अपने मंत्रालयों के कार्य में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। एमना मंत्रालयनी अंदर एमनो जे कार्यों प्रत्ये एनो जे दृष्टिकोण हतो, एमने जोवानी रीत हती ए एकदम व्यवहारिक हती, एटले एकदम अनुकूल हती, प्रसंग समयने अने परिस्थितिने अनुकूल हती अने दरेक प्रकारनी औपचारिकताओ जे सामान्य जे औपचारिकताओ जे निभाववानी होय एमने पण अनुरूप हती। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। जे आपणे पहेला वात करी के एमना जीवननी अंदर सादगीनो पण एक गुण हतो। ए क्यारे पण पोताना पदना कारणे पोताना व्यक्तित्वने सौथी ऊंचुं मानता नहीं। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ए एक ज बाबतमां मानता हता कि पोते जे जनताना शासक नथी, एमना पर राज करवा नथी आव्या पण जनताना सेवक तरीके आव्या छे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। एमने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मळती ज हती पण साथोसाथ एमने आखा देश में पण लोकप्रियता मळती हती। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। एना कारणे जेना परिणामे देशे ज्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरूना अवसान पछी प्रधानमंत्री पदनी जे जवाबदारी संभाळवा माटे सौथी वधु योग्य उम्मीदवार तरीके लाल बहादुर शास्त्रीने स्वीकार्या हता। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। 19 महीनाओं माटे एमणे आ प्रधानमंत्री पदनी जे जवाबदारी होती ए संभाળી હતી અને जवाबदारी એટલી સરસ રીતે સંભાળી હતી કે આપણા બધા માટે પ્રેરણારૂપ જવાબદારીઓ बनी रही। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। एमनो जे लक्ष्य हतुं एकदम स्पष्ट हतुं। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। एमां कोईपण प्रकारनुं धूंधळुपण के कोईपण प्रकारनो भटकाव एटले दिशाथी भटकी जवुं एवी कोईपण बाबत के एना लक्ष्यनी अंदर एवुं कोईपण माध्यम हतुं नहीं। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। आ पदों पर घણા બધા पदों पर एमणे जवाबदारीओ निभावी अने खूब सारी रीते निभावी, छतां पण एमने जे मळेला अधिकारो हता एनाथी पण ए संपन्न रह्या। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। तरजीह दी एटले महत्व आपवुं। एक मंत्री तरीके, एक देशना एक वड़ा तरीके, एक प्रधानमंत्री तरीके एमने जे अधिकारों मळेला हता ए अधिकारों करता एमणे पोताना कर्तव्यने हमेशा महत्व आप्युं हतुं। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके, एना कारणे जे सौथी वधु लोकप्रिय थया हता।
उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। 19 डिसेम्बर 1964 दिवसे જ્યારે અલીગઢ મુસ્લિમ વિશ્વવિદ્યાલયના દીક્ષાંત સમારોહમાં જ્યારે પદવીદાન સમારોહ હતો એમાં એમણે કંઈક પોતાના વિચારો આ રીતે રજૂ કર્યા હતા। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। એમણે બાળકોને જે વિશ્વવિદ્યાલયના જે સ્ટુડન્ટ હતા, જે વિદ્યાર્થીઓ હતા, એમને એક સલાહ આપી કે તમે તમારા વ્યક્તિગત જીવનની અંદર કોઈ પણ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માગતા હો એના પહેલાં તમારે હંમેશા એવું વિચારવું જોઈએ કે સૌથી પહેલાં તમે આ દેશના એક નાગરિક છો। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का भी बोझ आता है। ते तमने न्यायतंत्र तरफथी अपनी शासन व्यवस्था तरफथी अमुक अधिकारों तो मळे ज छे, पण एनी साथे साथे अमुक जवाबदारीओ पण आपणे भोगववानी होय छे, जे आपणे निभाववी जोईए। जिसे समझना चाहिए, हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। આપણો દેશ પ્રજાતાંત્રિક, પ્રજા દ્વારા ચાલતું તંત્ર એટલે પ્રજાતાંત્રિક। આપણો દેશ એવો દેશ છે કે જેમાં પ્રજાતંત્રને ચલાવતી હોય, जो एक निजी स्वतंत्रता है, जे एक स्वतंत्र देश की खासियत है। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। आज स्वतंत्रता है एनो उपयोग एक व्यवस्थित समाजना हित माटे जे प्रतिबंधो लगाववामां आवेला छे ए प्रतिबंधोने अनुरूप होवो जोईए। आपणा नियमोने अनुरूप आपणी स्वतंत्रता होवी जोईए। स्वतंत्रता तो होवी ज जोईए, पण एवी स्वतंत्रता होवी जोईए के जेनाथी देशनुं, समाजनुं अने व्यक्तिनुं पोतानुं त्रणेयनुं हित होवुं जोईए। तो एना माटे आपणा जे नियमो छे एनुं पण आपणे पालन करवुं जोईए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज भी याद रखने की ज़रूरत है। अधिकारों, कर्तव्यों और आत्मसंयम ना विषय शास्त्री जी आ महत्वपूर्ण बातों करेली हती, जेने आपणे आजे पण याद राखवी जोईए। पाठनी अंदर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्रीना जीवननी घणी बधी वातो करेली छे, एमना प्रसंगोनी वातो करेली छे, अने प्रसंगोमांथी आपणने घणी बधी शीख मळे छे। पण एमांथी एक मुख्य जे शीख छे ते आ पाठना शीर्षकमां पण लखेली छे, कर्मयोगी। આપણે હંમેશા આપણા જીવનની અંદર આપણે કરેલા કર્મોને જ પ્રધાનતા આપવી જોઈએ, એને જ હંમેશા મહત્વ આપવું જોઈએ। જે વ્યક્તિ કર્મને મહાનતા આપે છે, કર્મને મહત્વ આપે છે, કર્મને વિશેષ અધિકાર આપે છે, એ જ વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં સફળ બની શકે છે અને એકબીજા માટે પ્રેરણારૂપ પણ બની શકે છે। થેન્ક યુ।